अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी ड्रीम। मेरा नाम है ज़ैन परवेज़ और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद थी मेरी ए लेवल्स की हिस्ट्री टीचर मैम मलीहा। शी वाज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ बिजनेस वूमन. She won the first ever presidential award for women in business. She's also a writer. She used to write for Dawn News and she was also a foreign correspondent in Channel 9. It was a very interesting podcast. In this podcast, we talked about the women in workspace, the laziness factor in Pakistani society and how we can work together to form a better society. Enjoy watching. Ma'am, first of all, welcome to the podcast. Thank you, Zain. Thank you for having me here. सबसे पहले ये बताएं how you feeling being on Pakistani Dream for the first time. Honored and extremely flattered because I'm going to be joining a list of really, really amazing people who've been on the show already. Okay. What do you mean by yeah, sure? You're framing me as a villain right now. No, I'm genuinely very honored. And do I add the part that I did not want to be here? But I'm really, really grateful that you called me still. Ma'am, I would like to ask about your early life and education. Sure. Where were you born and where did you study? Zain, I was born in Karachi and that's really about it. That's my connection to Karachi, that I was born there. Mm-hmm. And when I was 2 or 3 years old, we moved here to Islamabad. And we moved as a nuclear family. We didn't have any family here. And so since 3 years old till now, I've been in Islamabad and got my education here, got married here, had my child here. So, yeah. जी मैम, इस्लामाबाद के अलावा आपने पाकिस्तान के कौन-कौन से हिस्सों को एक्सपीरियंस किया है? Like long term तो किसी भी जगह को नहीं एक्सपीरियंस किया. Just been Islamabad. This has been the center and really like my roots are established in Islamabad. Karachi, I go very often because my mom's side of the family is in Karachi. So back and forth उधर होता रहता है. उसके अलावा लाहौर में एंड लाहौर का भी इस तरह है कि माई हस्बैंड्स फैमिली इज इन लाहौर सम पार्ट ऑफ इट इवन दो यू नो दे फ्रॉम बहावलपुर so I've been to Bahawalpur, of course. I've been to Multan. I've been like only the biggest cities. I haven't really ever experienced the rural part. Life in I have not because I don't have a village, so I haven't experienced. But how's life in Islamabad? Love it. Compared to Karachi? I would not want to go anywhere and live. Like, you know, I love the pace of Karachi. Karachi is like, I love Karachi because of my family there, of course. And the pace and the life there, there's a vibe, you know, you feel the high when you go to Karachi. But जैसे ही आप इस्लामाबाद वापस आते you're like, okay, great. You know, सांस सब आ रहा है, you know, smells नहीं आ रही हैं. So not to sound like an Islamabadi snob, but Islamabad is everything, honestly speaking. I don't like the fact that it's been changed a lot over the years, but cities evolve, you know. अच्छा मैम, you have traveled the world. Yes. पाकिस्तान के बाहर भी आपने डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है. वहाँ पे उनके कंपैरिजन में इस्लामाबाद को किधर रैंक करेंगे? मैं इस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहती बिकॉज देखो यू कैन नॉट कंपेयर योर होम टू एनी प्लेस. मैं जिस भी जगह जाती हूँ ऑब्वियसली उसकी एक नॉवल वैल्यू होती है एंड व्हेन यू लुकिंग एट अ प्लेस यू looking at it from a very touristic point of view. Even though like the way that we travel is that हम लोग कोई luxury traveling बिल्कुल भी नहीं करते हैं. We go and we adopt a culture. We live in a very simple way. हम वहाँ जाके we rent out bikes, we eat their local food, हमारी वो वाली नहीं लाइफस्टाइल होता कहीं भी ट्रैवल करने का कि ओ जी बड़े लग्जूरियस होटल्स में ठहरेंगे और समथिंग. So but there's still a lot of, so when you go anywhere outside of Pakistan, आपको अच्छा लगता है, you know. And we've been very lucky, touch wood, that we've been treated very well wherever we've gone, you know. And हमारा हमेशा अच्छा, like very smooth. We've never been scammed. We've never had a bad experience at any place that we've gone to. But when you come back, you're just grateful कि यार अपने बिस्तर पर आ गए हो. You're grateful कि you know अपने लोग हैं. And कभी कभार होता है कि आपको you do feel a little sad that the world has really progressed. You know, it has really developed. And लोग बहुत मेहनती हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. And when you come back तो एक थोड़ा सा आपको ये feel ज़रूर होता है कि there is a lot of space for people in Pakistan to grow. वो आपको नज़र आता है, immediate contrast आपको दिखता है.
But then you obviously also think, you know, we are comparatively a newer country compared to other countries. So even equating that and comparing that becomes slightly problematic. Yeah. So I always come back and I'm grateful that I'm back. I love being here. And एक होता है ना अपनी जगह की एक अपनी एक value होती है. So yeah. इसी तरक्की और डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बिजनेस को लेकर डोंट यू थिंक इस्लामाबाद और द पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर वेरी स्लो? क्योंकि अगर कराची से भी कंपेयर करें ना तो उधर वो बड़ा एक हसल करने वाला कल्चर है. और बाहर की दुनिया के दूसरे सिटीज़ में तो ऑब्वियसली हर कोई सुबह उठता है और बड़ा तेज हर चीज़ हो रही होती है. Okay. लेकिन डोंट यू थिंक इस्लामाबाद इज़ वेरी स्लो और बड़ी लेट डाउन? Okay, so I don't want to, I think you've put me in a really tough spot here. Okay, so I'm just going to give you an example जब मुझे बहुत ज़्यादा feel हुआ था. So we were in Philippines for a while and we were going from we went to 7 different places in Philippines. And जहाँ पर we went to हम लोग उधर we went to this place called Oslob जहाँ पर होता है कि whale sharks के साथ you get to swim with them. So when we got to Oslob, so Oslob was a very small little island in Philippines. And वहाँ पर हमने एक चीज़ ये देखी कि they wake up at sunrise. ठीक है, sunrise पर पूरा island जाग जाता था. ठीक है, and they would work like women, men, even blind people, whoever, like, you know, nothing, no disability, nothing, your gender, nothing would restrict you. They would start working and जैसे ही sunset होता था, everything would close down. ठीक है, and they were the most hardworking, most progressive and most environment friendly. आपको कुछ प्लास्टिक की चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कहीं पे आयरन नहीं मिलेगी. They use either they go by foot to places or they go in buses कि आपकी individual cars ना हो. So they're trying to really minimize your carbon footprint that way. So वहाँ जाके ना when we went to Philippines हमें तब एहसास हुआ कि यार लोग कितनी मेहनत करते हैं, you know, and they're nice. वो इतने productive हैं, उनके अंदर जो values हैं. So and it was such a contrast. एक incident में I would just want to squeeze in an incident here. We were at a bus stop and somebody told us that we had to get on a bus. And the guy said कि just get on a green bus. हमारे सामने से 2-3 green buses गुजरी, so we got really confused कि हमने किस green bus पे चढ़ना है. So suddenly we just asked this man, we're like, you know, we need to get on a green bus. So he saw our ticket and he picked up our bags and he started running with our bags. And we were running behind him and we got really scared कि he's going to just, you know, steal our things. क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये थॉट आई कि जी हमारे साथ कोई you know कोई चोरी कर रहा है, स्पीड में भाग रहा है वो बंदा हमारे बैग्स लेकर. एंड ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू अस, ही हैज आवर टिकट्स एंड ही हैज आवर बैग्स एंड ही इज रनिंग एंड वी आर रनिंग बिहाइंड हिम एंड ही स्टॉप्स द बस फॉर अस एंड ही इज लाइक गो 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 एंड वी गॉट इन. उसने बस रुकवा दी, उसने वो बैग्स हमारे डाले. सो सफ़ी पुल्ड आउट हिज वॉलेट टू गिव हिम सम मनी कि यार ये हमारे लिए करा. He got offended. He was properly offended at us. Ke, you friend. And you know, that's what he said. And he just started walking away. Okay. And we were just like, okay, ye bhi hota hai. You know, people are like this nice to us. Contrast में हम वापस आए पाकिस्तान और हम एयरपोर्ट पे थे और हम अपने बैग्स उठा के गाड़ी की ट्रंक में डाल रहे हैं. एक हट्टा गट्टा जवान बंदा है, उसने यूं बस हाथ ना लाइक हम बैग्स डाल चुके हैं, यूं उसने हाथ लगाया, कहता है बाजी 500 तो दे दो ना बाजी. एंड वी जस्ट लुकिंग एट हिम बिकॉज हमारे साथ लिटरली यू नो इन लाइक अ कपल ऑफ डेज ये इंसिडेंट हुआ था. एंड सफ़ी जस्ट टर्न टू मी लाइक जाके काम करो पहले कोई, यू नो, बिकॉज हमारे यहाँ इतनी आदत हो गई है काम ना करके पैसे लेने की कि वी हैव, हम ज़रा सा अगर किसी की मदद भी करते हैं ना तो the person expects that we have to be paid for it. So that kind of entitlement exists. When it comes to being nice to the foreigners, I think Pakistani no, they're not just nice to foreigners. We have seen it, you know. No, they would leave the seat for the elderlies. Udhar itna culture hai. Wahan par, if anybody has some sort of a disability, if somebody's pregnant, पूरी लाइन्स पार्ट हो जाती थी कि ओके लेट द प्रेग्नेंट वुमन गो फर्स्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इफ समबडी हैज अ चाइल्ड, पीपल वुड मूव अवे कि यू नो दैट पर्सन हैज अ चाइल्ड, तो उसको वेट ना कराओ किसी चीज़ के लिए. तो हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते हैं इस चीज़ का, यू नो.
This was the thing that made me very curious even when I was in Spain as a child. कि जब भी आप एक रोड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं स्ट्रीट के ऊपर तो सारी गाड़ियां जो हैं रुक जाती हैं एंड नोबडी क्रॉसेस. तो उधर बाकी उनके छोटे छोटे ऐसे एथिक्स हैं कि आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ें हमें अपने कल्चर में अडॉप्ट करने के लिए व्हाट विल इट टेक. बट ज़ेन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी ना. देखो दैट्स द थिंग विच इज़ द सैड पार्ट ऑफ इट कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. Civil responsibility existed. I just feel like over a period of time it has deteriorated. You know, I don't mean to sound like oh ji Pakistan पूरा ही ऐसा है या सारे ही ऐसे. It's not like that. You know, it is just कि वो inculcation of civil responsibility वो किसकी responsibility है? Who has to put that in? कि how are you supposed to behave as a community? आप क्या कह रही हैं कि पहले exist करती थी responsibility and it diminished with the period of time. Yes. What caused that diminish? मैं अगर मुझे तो इस चीज़ का literally I've heard about it from my own parents. I'm sure you have heard about it too. कि you know पहले जिस तरह एक मोहल्ला कल्चर होता था, ठीक है, everyone used to own that. लोग साथ रहते थे. ईद होती थी, बच्चे कपड़े पहन के हर घर जाते थे, अपने कपड़े दिखाते थे, हर किसी से you know 2-2 रुपए मिल जाते थे या you know there was an ownership of a community. People existed in a community. उस community में ये होता था कि अगर कोई बीमार है, people used to support that. किसी की बेटी की शादी है, people used to support that. You know, there was no selfishness. You know, and एक responsibility होती थी that was not selfish and it wasn't कि भाई मैंने ही progress करनी है, मेरी ही family आगे निकल जाए. लोगों के अंदर values होती थी and people used to value other people. Over time, I feel like that thing has diminished. आपकी एक पूरी एक community जो है ना, it has become a very progress oriented, which is a good thing, but a very selfishly it's being done, जिसकी वजह से overall आपको development नहीं दिखती. Get it? Because अगर आप लोगों को साथ लेकर कोई चीज़ चलोगे ना, एक communal वो होगी, then it's going to happen. Na? It's not, change is not going to happen कि जी एक बंदा, and this is another problem with our country कि एक हमारा ये जो hero complex है ना कि कोई एक बंदा ही आके सारी चीज़ें सही कर देगा, उसने भी हमें ले डूबा है. अच्छा, ये दो चीज़ें जिनको मैं साथ साथ लेके चलना चाह रहा था. When it came to like business and progress, हमें लगता है कि हमारा मुल्क बहुत स्लो है, लेकिन at the same time उसके जो कॉन्ट्ररी है कम्युनिटी और जो आपस में कम्युनिटी का बॉन्ड होता है, अगर तो हम प्रोग्रेस में स्लो हैं तो हमें उस साइड पे थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. लेकिन हमारी कम्युनिटी भी वीक होती जा रही है. हमारी सोच बेशक प्रोग्रेसिव है बट हमारे एक्शंस दे आर नॉट वेरी प्रोग्रेसिव. Then there's so many reasons for it. देखो, एक तो there's a division in everything, ठीक है. दूसरा I feel like कि आपकी जो community का एक बहुत integral part है which is your women folk, ठीक है. हमारे like मुझे literally ये feel होता है कि we find reasons and excuses to not work, you know, कि कोई काम करे ही ना, you know, like literally है, औरत है, काम नहीं कर सकती, ठीक है. पढ़ा लो, ग्रेजुएशन करा लो क्योंकि उसके बाद तो शादी करनी है, ठीक है. या डॉक्टर बना दो लड़की को, डॉक्टर बन जाएगी. इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड आंटियों को भी डॉक्टर बहूज चाहिए होती हैं, यू नो. एंड देन वो शादी करके जो उसकी बेचारी की सारी एजुकेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है. ओवर टाइम व्हाट दिस हैज़ डन इज़ के पहले तो आपका गुजारा हो जाता था कि एक बंदा कमा रहा है, 15 बंदे खा रहे हैं, यू नो. अब वो नहीं है, यू नो. एवरीवन नीड्स टू वर्क. बट जब आपने एक पूरी इतनी बड़ी सी जनरेशन रेस कर दी है ऑन द प्रीटेक्स्ट वे विमेन डोंट हैव टू वर्क, तो विमेन फील लाइक कि अच्छा जी अब हमें काम भी करना पड़ेगा, घर भी संभालना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर अनएबल टू डू इट, यू नो. बर्नआउट्स हो रहे हैं लोगों को. पीपल आर, दे फील एंटाइटल्ड टू मोर बिकॉज दे थिंक कि आप काम करके किसी पे एहसान भी कर रहे हो. फिर थिंग्स आर गेटिंग निगलेक्टेड इन द प्रोसेस एज वेल. दूसरा ये है कि कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो भी एक आपके लिए एक इकोनॉमिक बर्डन बन जाती है वो चीज़, यू नो. The world over, this doesn't exist. You know, the world over, like if you look at developed and even countries which are developing, you have a responsibility to contribute to the economy. You cannot be an economic burden. But if you look at Pakistan, the economic burden falls on the man entirely. ठीक है, the man has to, it's his responsibility कि वो
कम्युनिटी भी चलाए, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फैमिलीज भी चलाए. अब इन्फ्लेशन आपकी किधर जा रही है, यू नो, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करें, सब कुछ करें, आपकी एवरीथिंग. इसी वजह से इफ़ यू नोटिस एवरीवन इज़ इन डेट एज वेल, यू नो, हर कोई क्रेडिट कार्ड डेट्स में भी है, मल्टीपल कार्ड्स लोगों ने रखे हुए हैं टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल. डोंट यू थिंक मैम जो मुश्किलात हम अभी फेस कर रहे हैं, यूरोप हैड बीन थ्रू दिस अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. Yes, but we're not learning from this as well, ना Zen. देखो हम लोग कब लर्न करेंगे, मुझे ये बताओ. I think अभी जो रिसेंटली जितनी इन्फ्लेशन हुई है और जितने हालात ख़राब हुए हैं इकोनॉमी वाइज, मेरे ख्याल से मोर women are going to come into the You workforce. really think there are so many industries and jobs for women कि वो that कर सकें? मेरा इस पे यही क्वेश्चन आ जाते हैं ना. देखो अगर आपकी ये कोई नीड है, ठीक है, हर कोई, अब इमेजिन करो कि अगर कोई जॉब किसी बच्ची ने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, वो चाहेगी कि उसकी स्टार्टिंग पे ही लाख हो, ठीक है. शी डज़ नॉट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शी डज़ नॉट वांट कि जी मैं मेहनत करूं. वो एक इंटाइटलमेंट से एक चीज़ आ जाती है. फिर हर किसी को रिमोट जॉब्स चाहिए दैट पे यू इन डॉलर्स, ठीक है, क्योंकि फलां इज़ अर्निंग इन डॉलर. तो बेटे आपको क्या ज़रूरत है कि आप क्यों इतनी ख्वारी कर रहे हो, यू नो. देयर सो मच इंटाइटल्ड. हम, मुझे जो फील होता है ना कि वी आर सो इंटाइटल्ड कि हम हर काम को बड़ा छोटे में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. हमें लगता है कि ये काम इज़ नॉट अप टू आवर स्टेटस, इट्स नॉट अप टू द मार्क फॉर अस. सो वी जस्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू नॉट वर्क. ज़ेन एसेंशियली बात इस पर आ गई है. वही बात आ जाती है कि ये बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो मर्दों और औरतों के लिए इक्वली नहीं है. That's what it is. Yes, that is what it is. कि देखो इंडस्ट्रीज अगर क्रिएट हो भी रही हैं, ठीक है, हमारे पास उस तरह की स्किल सेट्स भी नहीं हैं. मुझे जिस चीज़ का बहुत लाइक देयर इज, जिस तरह दुनिया जा रही है, जिस तरफ दुनिया जा रही है, हमने एजुकेशन को भी उस तरफ प्रोग्रेस नहीं किया. वी डिड नॉट look at where the world is going कि हम अपनी जनरेशन्स को उन चीज़ों में डालें. सारे बच्चों ने BBAs कर लिए, सारे बच्चों ने BSc मीडिया कर लिया या इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है. they didn't look at where the progressive world is going and किन जॉब्स की ज़रूरत होगी. आपके हर स्कूल ने काउंसलर्स रख लिए, but the counselors were just focused on the fact कि जी हमने बच्चों को scholarships दिलवा कर कहीं भिजवा देना है बस. You know, that is what they were working on. They were not looking at the niche markets. They were not looking at कि अच्छा ये अब compared to our neighboring country that years ago figured out कि हमने IT cities बनानी है और हमने अपनी एक पूरी जनरेशन को IT में डालना है. एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के IT के CEOs और सारे बैठे हुए वो उस मुल्क से जा रहे हैं. यू नो, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है उस हिसाब से. एंड दिस इज़ अ फ्लॉ. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे जंप्स मार रही हूँ, बट द आइडिया इज़ अ वेरी सिंपल वन. वी नीड टू स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी क्या है, ठीक है. प्रायोरिटी इज़ to contribute to the economy in some way, ठीक है. आपके घर की जो ख़वातीन हैं उनकी अंदर कोई तो स्किल होगी ना, ठीक है. they need to figure out that skill और वो बैठ कर बस खाए मत, you know, add to something. आपके जो बच्चे हैं, give them the kind of education and a skill set जिससे वो बढ़ सकें, ताकि वो कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकें, रादर देन कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि जी इंडस्ट्रीज आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, कि जी लाइक 20,000 बच्चा है जिसने BBA किया हुआ है और आप वो BBA की डिग्री का क्या करेगा, यू नो. अब इंजीनियर्स बने हुए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री है जिस पर उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, पर वो कर क्या रहे हैं? दे आर डिजिटल मार्केटियर्स, ठीक है. I'm trying to make you understand कि your education is not actually translating into the kind of profession that can help your country grow. And so there's like बिल्कुल ही ना no planning. कि लोगों ने किसी चीज़ की planning नहीं करनी होती. You know, दिल चाह रहे जी बच्चे पैदा करते जाओ, you know, खिलाएंगे कहाँ से. अच्छा मैम, you won the first ever presidential award for women in business. Yes. Yeah. I wasn't the only woman. Let's clarify that. Yeah. But yes, you know, there were a lot of women but who it won was that. the first ever yes, award it for was, women. Yes, in 2022. Right? अब पाकिस्तान के केस में देखा जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा तबका है, एक हमारी जो अपर मिडिल क्लास है,
they have the resources to create employment, right? Yes. Business कर सकते हैं अपनी entrepreneurial skills को इस्तेमाल करके. But again देखा जाए तो women का business के अंदर इतना trend नहीं है, relatively. Yeah. They can be the ones who create opportunities for other people, right? Yes. तो सबसे पहले तो ये बताएं कि how did you come to start your business? Yes. What were the hurdles, and can every woman in Pakistan or even at least in the upper middle class start? Because then to even run a business, to own a business, I think it's really, really essential to do some jobs first. ठीक है? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको काम करना नहीं आता, आप किसी और से काम करा नहीं सकते. ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक कि मैं आज उठ के कहूँ कि अच्छा जी आज मेरा मूड कर रहा है कि जी मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, तो मैं ये बिजनेस करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे इतने पैसे दे देगा या मेरे अब्बा जी मुझे इतने पैसे दे देंगे, तो जी मैं 10 लोगों को हायर कर लूँगी, वो बिजनेस चला देंगे और मैं बैठ के ना प्रॉफिट्स खा लूँगी. आई विल सिट इन सम अदर कंट्री एंड देखो मैंने इतनी एम्प्लॉयमेंट भी दे दी और मैंने इतना नाम भी कमा लिया. यूजुअली आपकी अपर मिडिल क्लास ये सोच रही है. दे आर लुकिंग एट अदर पीपल, दे आर लुकिंग कि अच्छा फलां डिज़ाइनर इतने के कपड़े, लाइक हर कोई चला जाता है टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग क्लोथ्स और डिज़ाइनिंग हाउसेस, इंटीरियर की तरफ चले जाती हैं. लॉट ऑफ विमेन. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर बैड थिंग्स, आई एम सेइंग कि अच्छी बात है कुछ तो कर रही हैं, यू नो, इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग समथिंग. But for you to run a business, you need to know how to do it. You need to understand. You cannot delegate the authority to somebody else without knowing कि काम करना कैसे है. How do you do something? So बात आ जाती है पहले कि आपको अंदर पहले एक मेहनत की एक वो हो. You need to have a game plan of what to do and how to do it. Then see the feasibility and see the time that you can give to do it. You know. If I'm having a child or if I'm a full-blown housewife और मैंने घर भी देखना है अपना, पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि नहीं मैंने 8 घंटे अपने काम को भी देने हैं, 8 घंटे मैंने घर को भी देने हैं, मैंने उसमें सोना भी है, मैंने अपनी सोशल कमिटमेंट्स भी पूरी करनी है, किसी को नाराज़ भी नहीं करना. It's not going to work. ठीक है? Identifying your capacity as well, you know, because for a man, he does not have to do the things that a woman is doing at home, you know. He's not even responsible for the social aspects के, you know, जो ख़ानदान में निभाना है, चीज़ें देनी है, शादियों पे जाना है, फौदगियों पे जाना है. The man is not doing that, ठीक है? So he can give those 8 hours to his work. He can build a career. Women जहाँ पे, coming back to your question कि जी आपकी जो upper middle class है वो job opportunities create कर सकती है, the women in it, वो job opportunities create करती हैं in the form of startups, but they don't last. ठीक है. 6 months in आपका स्टार्टअप डूब जाता है बिकॉज जो आपने पैसे लगाए हुए होते हैं, यू आर स्पेंडिंग मोर देन दैट, यू नो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट बिजनेस एक्यूमेन, यू डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मैंने अभी 2 लाख लगाए हैं तो साल बाद मुझे 2 करोड़ मिल रहे होंगे, बिकॉज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम बिजनेसेस, अनरियलिस्टिक आपकी अपनी, बिकॉज इन योर ओन हेड आपने अपने आप को भी बहुत इन्फ्लेट किया हुआ होता है कि यार मैं तो कुछ हूँ, यू नो. सो देखो, आई फील लाइक कि यू डोंट इवन नीड टू बी फ्रॉम अ सर्टेन क्लास टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है. देयर आर सो मेनी विमेन क्राफ्टर्स एज वेल, यू नो, लाइक आई नो देम पर्सनली एज वेल. दे have a skill to create something and they have ended up making big businesses. And they are selling on Etsy, they're selling on, you know, उन्होंने craft bazaars करना शुरू हो गई हैं. So proud of them. There's amazing women that I know. So, and I'm not reducing कि भाई आपने एक small या medium business ही करना है. Women can do big businesses. आप वो भी कर सकते हो. But at the end of the day, Zen, the responsibility first lies on you. आप कुछ सीखो and अपनी expectations भी real रखो. You know, you need to be able and have the understanding कि Pakistani market is also extremely volatile. You know, आपकी कुछ भी देखो, sorry to say this, but मैंने एक दिन I have to go have a meeting somewhere. ठीक है, मैं जा नहीं सकती कि जी धरना हो रहा है. ठीक है, मेरी मीटिंग रीस्केड्यूल हो गई टू नेक्स्ट वीक. आई एम लूजिंग ऑल दोज डेज टू डू माई वर्क, यू नो. व्हेन वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड या कोई यहाँ पर आया हुआ होता है, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान में इतनी छुट्टियाँ क्यों होती हैं. वाई, लाइक इफ समबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट,
पूरी सिटी क्यों बंद हो जाती है, यू नो. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू डूइंग, लाइक इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट. आपको पता भी नहीं चलता. the investors who want to come to Pakistan, a lot of them don't, because जब वो आकर यहाँ की सिर्फ टेस्टिंग करते हैं ना, उनको ये होता है कि political instability इतनी है कि they don't know if there's going to be return on that kind of an investment. So working in Pakistan is a very difficult thing. Running a business, you would also know, your father does it. A lot of people would relate to this, but इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना करो. मैं वही बात करूंगी कि ये this will still fall in some form of an excuse. कुछ कर लो, स्टार्ट समवेयर, डू समथिंग. जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं. अपने आप को पहले एम्प्लॉय करो कहीं पर, देन डू समथिंग, यू नो. अच्छा मैम, ऑन वन साइड वी से कि वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आजकल जो फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चल रही है और वैसे भी बात की जाती है. और ऑन द अदर साइड ट्रेडिशनल एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि जो डिपेंडेंस है उसी की वजह से फैमिली की जो है बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है. अच्छा, हम भी ये बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटी की जो बॉन्डिंग है वो भी हम लूज़ कर रहे हैं, और हमारे एथिक्स और मोरल्स जो हैं वो भी वेस्ट की तरह अच्छे नहीं हैं. डू यू थिंक women gaining financial independence, obviously it's going to contribute to the economy, लेकिन do you think it's going to impact the family structure in a negative way? देखो Zain, what we need to understand is that communities have to evolve. ठीक है, जो what we call traditions essentially are just something that somebody concocted कि अच्छा जी this is the way things have to be done. ठीक है, but that's not like the rule of life, and that shouldn't be the rule of life. It shouldn't be. If something is not working out, if something is contributing to the deterioration of a society, don't you think that should change? Like, don't you think कि evolve होना चाहिए? And why is it that the onus of keeping families together, keeping a community together, why does that fall on a woman? ठीक है? Doesn't that have to be a shared responsibility? Why does it have to be something that is so gender specific कि जी कि हमारे यहाँ जी और मुझे इस बात का ना बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रही है कि हम बात करते हैं जी पेट्रियार्की की. ठीक है, मुझे अब ये ज़्यादा फील होता है कि जो औरतें हैं ना, दे हैव बिकम द कस्टोडियंस ऑफ पेट्रियार्की. ठीक है, वो मर्दों से ज़्यादा तो वो पेट्रियार्कल हैं कि जी नहीं ऐसे होना चाहिए या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, कि उसको देखो कि वो इतनी वो है, कि उसको देखो वो तो भाई मर्द से ज़्यादा कमा रही है, या like women are the ones who are contributing more to this whole psyche of men. I don't necessarily think कि मर्दों को इतनी प्रॉब्लम अब रही है, because देखो why would they hate the idea if their woman is financially contributing to the household. ठीक है, wouldn't you like it कि तुम्हें कहीं से relaxation मिल जाए कि यार घर पे गरम खाना भी मिल रहा है और बीवी अपने खर्चे तो खुद उठा रही है ना. लेकिन अगेन माय क्वेश्चन वाज कि हम ये भी चाहते हैं कि वेस्ट की तरह हमारे बच्चों के अंदर वो एथिक्स और वो मोरल्स आ जाएं कि उनको पता हो कि हमने गाड़ी कब रोकनी है, कब पैसेंजर को हमने जाने देना है, और बाकी जो छोटी छोटी चीजें. So why is it that this is the woman's responsibility? Why can't you as a father teach this to your child? Why can a grandfather not teach this to the child? वो पलट के ये क्यों नहीं कहते कि जी हाय हमारी बहू ने नहीं सिखाया या हमारी बीवी ने नहीं सिखाया, उसने सही तरबियत नहीं की. Why is that entirely the woman's? Like, my question, I'm not speaking as a feminist again, or anything. This is how it has always been, na? Traditionally, but that's what I'm trying to say, that needs to evolve. नहीं देखो Zain, that needs to evolve. And I say this because I was raised by a father who was very maternal. ठीक है, he was not gender specific like this. Personally, I was trying to get out of this family, और मैं थोड़ा education की तरफ जा रहा था, because ultimately नहीं देखो role models have to come from home. मैं तो इस बात को हमेशा ये बात करती हूँ कि देखो role models have to come from home. आपकी तरबियत, आपकी upbringing वो education institute नहीं सिखाएगी. अच्छा मैम, आप तो देखें पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब एक औरत जो है, एक माँ जो है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो शी इज़ गोना हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग. उसको पता होगा कि मैंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, एंड दिस एंड दैट.
On the other hand, if the mother is not educated, so she's not gonna have. She's just gonna follow tradition कि जी मेरी माँ ने ऐसे किया या मेरी सास ऐसे कर रही है तो मैंने भी बच्चे के साथ ऐसा ही करना. हाँ, अगर आप कहती हैं कि यार फैमिली की बेस के ऊपर ही वो एथिक्स और वो मोरल्स और वो सारा कुछ डेवलप होता है जो हमें वेस्ट में नज़र आता है किसी हद तक, तो वेस्ट, डोंट यू थिंक वेस्ट की माएँ किसी टाइम पे ओके सॉरी, मैंने ये बात कही नहीं है कि जी जिस तरह की ये माओं की वजह से हो रहा है, मैं ये बात करी थी कम्युनिटी की. ठीक है, आई वाज सेइंग कि कुछ आपकी जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कम्युनिटी की एज अ कम्युनिटी पीपल डिसाइड कि वी विल बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वी विल रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी विल give importance to somebody who has disabilities or who is expecting a child, or like these are just things that just exist, manners exist, मैंने ये बात हरगिज़ नहीं की कि जी वेस्ट की माएँ आर बेटर कि जी वो एजुकेटेड हैं या जो भी, दैट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू. ठीक है, बिकॉज ये दिस इज़ स्टिल अ ह्यूज डिबेट कि आप चाहे बच्चे को जिस भी टेक्निक से बड़ा कर दो, बच्चे की एक इनहेरेंट पर्सनालिटी भी होती है उसकी. देयर सो मेनी, बिकॉज ऑब्वियसली यू स्टडीड फिलोसफी, यू नो दीज थिंग्स एज वेल कि देयर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. मेरा सिर्फ इस पर यह है कि देखो, आप जो मॉरल्स और वैल्यूज़ की बातें कर रहे हो ना, उसका एजुकेशन से ताल्लुक सच नहीं है जैन. ठीक है, योर मॉरल्स एंड वैल्यूज़, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी पता होगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि कि आपको किताबें वो चीज़ें सिखा देती हैं. गिव मी वन लाइनर, व्हाट इज इट दैट वी आर लैकिंग इन आवर सोसाइटी? वी आर लैकिंग द विल टू वर्क हार्ड एंड करेक्ट आवरसेल्व्स. एंड मैं एक सेंटेंस में इसको नहीं वो करूँगी. मुझे ये है, हम लोगों के इन्फ्लेटेड ईगोज हैं, हमारे अंदर एक्सट्रीम इंटाइटलमेंट है. वी थिंक दैट वी डिजर्व समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग. ठीक है, एंड दिस इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट्स लाइक फ्रॉम द लेवल डाउन टू द लेवल अप. हर किसी को लगता है कि जी पता नहीं क्यों, एंड आई डोंट नो वेयर दिस थॉट केम इन फ्रॉम, कि हम क्यों इतने ग्रेट हैं अपने दिमागों में विदाउट डूइंग एनीथिंग. हम लोग वर्क हार्ड नहीं करते हैं जैन, एंड विच इज़ लाइक, आई एम गोइंग टू यूज़ द वर्ड लेजी हियर. हम इनहेरेंटली लेजी हैं एज अ कंट्री, एज पाकिस्तानीज. हम उस तरह मेहनत नहीं करते हैं जैसे लोग करते हैं. अगर हमारे यहाँ की ख़वातीन, हमारे यहाँ के मर्द, हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े जो भी हैं, लाइक जापान में अगर 103 साल का बंदा भी अपने काम खुद कर रहा है, तो हमारे यहाँ की 60 साल की खातून अपने घुटने लेकर क्यों बैठ जाती हैं? Why is that happening? क्योंकि we are giving that kind of an extension to somebody कि आप ना करें काम. we are so fixated with the idea of luxury and comfort कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बट काम नहीं करना. ये वाली चीज़. But there are other, मेरे एक प्रोफेसर थे एंथ्रोपोलॉजी के, they would tell us कि वो डिफरेंट एरियाज में जाके ना पाकिस्तान के उनके पानी को टेस्ट करते थे कि इसके अंदर आयरन डिपॉजिट कितने हैं. जिस एरिया के अंदर ज़्यादा आयरन डिपॉजिट होते थे, ख़ासतौर पे पश्तून के कुछ एरियाज के अंदर ना पानी के अंदर आयरन थोड़ा ज़्यादा होता था, तो दे वुड से कि उसकी वजह से देयर नेचर इज़ मोर अग्रेसिव. दूसरा है कि क्योंकि वो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन एंड योर एनवायरनमेंट एंड योर एवरीथिंग, वो सारा कुछ आपकी नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है. और पाकिस्तान, इंडिया के जो लोग हैं, दे वर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड एज लेजी पीपल, क्योंकि उनकी लेड बैक अप्रोच है कि बस. तुम जो बात कर रहे हो ना, ऑफ कोर्स योर न्यूट्रिशन, योर डाइट, द क्वालिटी ऑफ एयर, and general आपकी wellness and well-being और आपका general lifestyle really impacts the way that you are raised. ठीक है, अब जो पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं वो सुबह में यूं पहाड़ चढ़ रहे हैं, उनका स्टेमिना, उनकी बोन्स will be much different from somebody who's literally जिसकी गाड़ी पोर्ट्स में खड़ी हुई है, वो बस यूं उतर के गाड़ी में बैठा कहीं पर भी गया. Of course there's going to be a contrast in that. बट आप एक जनरल स्पेक्ट्रम पर अगर हम बात करें ना जैन, में एक ओवरऑल उसकी बात कर रही हूँ कि नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट इस्लामाबाद हियर. और हमने क्योंकि इनिशियली भी ये बात की थी कि जी कराची की पेस डिफरेंट है, पीपल आर डिफरेंट देयर, हर इलाके के लोग मुख्तलिफ हैं, वो तो बात है. ठीक है, बट एक कम्युनिटी जो होती है ना, एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी या एक पाकिस्तान की
people working towards something, building up a country. हम अपनी neighboring country को ही ले लें. They worked towards something. सारों ने कहा कि जी we need to, एक American dream है, like there's a certain thing that people are aspiring as nations to do. एक ideology होती है, एक aspiration होती है कि as people, this is something. हमारी क्या aspiration है कि जी जरा सा पैसा आएगा मुल्क छोड़ के चले जाएंगे. We need another passport. This is our aspiration currently, because we've kind of given up on the country itself. But essentially what we're doing is we're giving up on ourselves, because हम नहीं करना चाहते. We don't want to even fix ourselves. We don't want to fix this country. So ma'am, they say that understanding the problem is half of the solution. Yeah. Lekin I personally don't think we have understood the problem very well. No, Zain, we have. किसी भी टॉक शो को ऑन करो, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रही होती हैं. बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में. अगर तो आप प्रॉब्लम को समझ गए अच्छे तरीके से, अगर तो वाकई ही जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, तो फोकस नहीं कर पा रहे. The solution would be right there. लेकिन now I'll just ask you, what are the solutions? Solutions to this? Solution बड़ी सिंपल सी है. अपनी मेंटालिटीज प्लीज चेंज करें. ये छोड़ दें कि कोई और आकर फिक्स करेगा. अपने रूटीन सही करें, डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइव्स में. ट्राई टू बेटर योर ओन डाइट. ये पाए निहारियों के नाश्ते जिसके बाद आप 2 घंटे सोए पड़े रहते हैं. फिक्स योर डाइट्स, फिक्स योर सेल्व्स, हैव अ बेटर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक. लोगों के बारे में अच्छा सोचें. स्टॉप पुलिंग अदर पीपल डाउन. स्टार्ट एट अ वेरी पर्सनल लेवल. दीज आर पर्सनल चेंजेस दैट यू नीड टू मेक. दे विल अप. कोई कुछ करता है, यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ के फलां का मूड ऑफ था, मुझे कोई एटीट्यूड दिखा रहा था, कोई बाहर जा रहे हैं इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे हैं, मैंने दूसरों को जेलस करना है. व्हाट इज दिस मेंटालिटी? व्हाट आर यू एमिंग टू गेट आउट ऑफ दिस? पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल इसको कम करें. फोकस ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ. ये ना सोचें कि मुझे सब आ गया. I am 60-70 years old. मुझे बेहतर पता है, तुम्हें नहीं पता है कुछ भी. इस चीज़ से निकलें. अपने इन्फ्लेटेड ईगोज को थोड़ा सा वो करें. वैल्यू पीपल फॉर पीपल. डोंट वैल्यू देम फॉर देयर स्टेटस, फॉर देयर कार्स, फॉर हु दे आर. अब लिटरली एक चीज़ होगी. पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई रिमेंबर देयर वाज दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मनी. देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट कि जी people used to be like अच्छा जायज़ भी है या white money है या black, and there was people used to not like interacting with people with that black, kind of money. अब तो इट्स बस पैसा होना चाहिए दूसरे के पास. हम उस doesn't matter कैसे आया. people don't we don't, हमारी priorities लाइफ में चेंज हो गई हैं. Let's revert to better values, to better models. Try to inculcate that kind of responsibility to your children. Try to focus on a generation that can actually work towards this country, यानी कि, and be less frustrated. आप literally कभी जाओ ना बाहर में, तो I find it really funny when I go out in the morning to drop my kid. Not a single smiling face you will see on the road. हर कोई सुबह में ऐसा सड़ा हुआ होता है. And like you don't see this anywhere. Like we were in Thailand for 40 days. एंड सुबह के 6 बजे मैं और जकी माई सन वी यूज टू गो टू ग्रैब ब्रेकफास्ट. हमें जो भी दिखता था ना सुबह से खुश, गुड मॉर्निंग, स्वादिका, एंड दे यूज टू बी रियली हैप्पी टू सी यू. एंड आप शॉप में जाते थे, दे यूज टू बी सो हैप्पी टू सर्व यू. यहाँ पर आप जाओ, सबके इतने मूड ख़राब होते हैं. दे जस्ट लाइक काम भी कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं आप पे. दे टेकिंग मनी फ्रॉम यू, नॉट अ स्माइल, नॉट इवन अ सलाम, सो try to, if you're looking for happiness, if you're looking for anything, try to be that happiness first. आप किसी को स्माइल करोगे, शायद 10 लोग आपको creepy समझे, चाहे आपको ना स्माइल बैक करें, but then eventually it happens. Happiness का क्या है? Like if a person is like, if you wake up in the morning and you're not feeling happy, do you think one should fake it until they make it? Yeah, why not? There are always so many things to make you happy. I don't necessarily think you need to fake it. There's so many things. Just look around and just be grateful. How many, and the world that we're living in with wars happening everywhere, we have so much to be grateful for. We have so much to be happy about, and हम फिर भी सड़े हुए रहते हैं. We are still so ungrateful, and I find that kind of sad for us as well.
क्या कुछ नहीं है यार पाकिस्तान में. We have everything and we're still ungrateful. मुझे जब मैं A-levels में था तो I used to listen to this philosopher और he once said कि if you tell a flower that you're looking beautiful, you can hear it say you're also looking beautiful. So what I used to do in A-levels was there was this park where I used to go. I think I touched almost every tree in that park. Nice. और हर tree को जाके मैं कहता था कि you're looking great today. You're looking so energetic and this and that. And आज भी मैं उस park में जाता हूँ ना, I feel like I am connected to those trees. That's awesome. It's really. बाद में मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी के एक जर्नल पढ़ा था. It said कि plants and trees they do not only are aware of, they're not only aware but they might be more aware than us. Yeah, I'm sure they are. They're also all connected to one another. So through fungi. Yes, they're all connected. Yes. अब mother tree को पता होता है कि मेरी daughter tree कौन सा वाला है और उसको अगर nourishment की. Zen, this is true for humans. देखो, we're all connected. हम अगर कुछ बोल रहे हैं या अपने hand gestures कर रहे हैं, this is not even, I think, 10% of the communication that's going on. I am connected to so many people right now that I don't even know. And if I have negative energies, those negative energies will be felt. I don't need to say it out. I don't need to voice them कि अच्छा जी मैं बैठ के expressively venting करूँ या गीबतें करूँ बैठ के तो किसी को वो होगा. They're just out there. I am sending out those negative vibes. And so why not kind of change that at a personal level first and then build it up, और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको कोई गम ना होगा. हर किसी के गम है. लाइफ इज नॉट सपोज टू बी स्मूथ एंड सिंपल एंड इफ इट इज गोइंग स्मूथ एंड सिंपल सिट बैक एंड थिंक कि क्या गलती हो गई है, क्यों स्मूथ एंड सिंपल जा रही है. लाइफ हैज टू हैव अ बीट. इट हैज टू हैव समथिंग. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. जिंदा है, इससे बड़ी अभी क्या बात है. Acha, ma'am, coming towards education, I think this is going to be our last part. Okay. Since you were my teacher. Let's get done with this. No, I didn't mean that. Yeah. Since you were my teacher, do you think, very simple question, do you think education is performing its role the way it should be in Pakistan? Like, do you think it is going to produce or it is producing the students or, workers that the workplace actually need? No. Simple no to that. देखो, हर एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है. इट्स नॉट लाइक, मैंने पहले भी तुमसे बात की हुई है कि आई वॉज इन द सेम एजुकेशन सिस्टम, माई डैड वॉज इन द सेम एजुकेशन सिस्टम, यू गाइज वेंट थ्रू द सेम एजुकेशन सिस्टम. उस तरह इवॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है, द वे द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. किस पे डालेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट रियली नो, बट टीचर्स पे डालनी है या फिर क्योंकि अभी तो प्राइवेट देखो, there has to be a strategy. ठीक है, there has to be a strategy that is countrywide. कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके, देखो, you have limited hospitals, training hospitals. ठीक है, लेकिन आप साल बच्चों को मेडिकल में डाले जा रहे हो. ठीक है, वो इतने डॉक्टर्स निकलते हैं बेचारे, वो एंट्री टेस्ट फेल करते हैं वो बच्चे, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, उनकी ड्रीम्स शैटर हो रही होती हैं बिकॉज देर नॉट इनफ ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स टू टेक देम इन. उनकी फिर उस तरह की ग्रोथ नहीं होती, उनको उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती, सिफारिशें चल रही हैं. एंड दैट्स ट्रू फॉर सो इंडस्ट्री टू एजुकेशन लिंकेजेस नहीं एग्जिस्ट करते. Who is going to sit there and make a strategy that defines कि अच्छा बच्चों की को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है. What are the essential skill sets necessary? यानी कि आप बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहे हो. ठीक है, म्यूज़िक क्लासेस हो रही हैं, म्यूज़िक क्लब्स हो रहे हैं which are mandatory in some schools. And to what end? This is just an example I'm giving कि you don't have the kind of resources, you don't have the industry कि वो एक स्किल अगर बच्चे ने डेवलप कर भी ली या उस बच्चे को आपने फुटबॉल क्लब में डाला हुआ, you don't have the kind of उस स्किल का क्या फ़ायदा होगा. Can we sit down as thought leaders who would sit, who are actual educationists, who are not there making money, जो अपने आप को so called educationists कह रहे हैं. I'm sorry, I'm going to get a lot of hate for this, but it has become such a money minting enterprise. लोग सिर्फ
इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बना के बैठ गए हैं, कह रहे हैं जी हमने इतने बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे हमने NYU भेज दिया, हमने ये कर दिया, हमारे तो इतने जी टॉप काउंसलर्स हैं, दे यूजिंग द फेसेस ऑफ देयर अलमनाइज टू कैश इन, वो बन जाते हैं उनके मार्केटिंग लीड्स के जी इनसे हम और बच्चे खींच कर लाएंगे, उनको ये लारे देते हैं, वो बच्चे वही डिग्रीज कर रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसकी इवेंचुअली कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो वैल्यू. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि देयर इज़ डिप्रेशन बिकॉज माँ बाप ने भी इतना पैसा लगा दिया, फिर बच्चा उतने पैसे कमा नहीं पा रहा, बच्चा इंटाइटल्ड फील कर रहा है कि जी आई डिज़र्व इट, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे इतने एज आए, अब मुझे जॉब मिली है, मुझे तो जी 6 लाख पर मंथ मिलने चाहिए, यू नो, वाई एम आई बीइंग हायर्ड एट 60,000 रुपीज़, यू नो, आई एम नॉट वर्थ इट, यू नो, आई एम वर्थ मोर. उसमें ये हो रहा है कि वो बच्चे एडिशनली एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ दैट एजुकेशन इज कि वो बच्चे व्हेन दे एंटर द इंडस्ट्री दे कैन नॉट टेक दैट वर्कलोड, उनको आता ही नहीं है काम करना, सो देन दे कैन नॉट हिट द फ्लोर रनिंग, सो देन दे हैव टू गो थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग्स कि नाउ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द एम्प्लॉयर कि जी अब आप इस बच्चे को ट्रेन भी करें, यू नो. सो एट अ and the government needs to make this, like parties अभी elections आ रही हैं, they need to pick this up. आप focus करें, strategy बनाएं, क्या skill sets, where is the world going, what are the industries that the world would require, how do we place Pakistan in a position that has produced such type of individuals who would be able to take on those responsibilities. कि इस industry में तो लोग है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हैं ये लोग, यू नो, दीज आर द किड्स हु आर गोइंग टू गेट द जॉब्स. हमारे यहाँ तो वो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है, हमारे यहाँ लिटरली, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आई एम श्योर देयर सो मेनी पीपल हु थिंक दिस, यू नो, लाइक आई थिंक ऑफ इट कि मेरा बच्चा 3 साल का है, आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि यू नो आगे जाके कौन से प्रोफेशंस एग्जिस्ट करेंगे उसके लिए. आई एम ऑलरेडी थिंकिंग दिस बिकॉज बाय द टाइम ही इज ओल्ड इनफ टू चूज अ करियर. शायद AI आज जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है, कल को हम कहेंगे बेटा तुमने AI में ही जाना है, लेकिन शायद तब तक AI पुराना हो जाएगा. that there will be something else, like हमारे टाइम पे लोग सोचते थे कि इंजीनियरिंग is a thing, but there are no पेरेंट्स को नहीं jobs. पता था कि इंजीनियरिंग होती क्या है, लेकिन they just wanted their children to become बेटा engineers. इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी. अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हो चुके हैं कि मतलब Where do they go? But देखो, but मैं तुम्हें फिर भी वही बात करूँगी कि I still feel like कि जिन्होंने साइंसेस पढ़ी होती है ना, वो फिर भी they're trained to do something. Like you know, उनका दिमाग ऐसा ट्रेन हो चुका होता है कि they still find a way to do something, because दिमाग को इस तरह कर दिया ना, they don't have those cushiony subjects कि जिसमें you know, like वो जो cushiony subjects है ना, they are those for those who can be thought leaders, who have the luxury and the privilege and generational wealth to not think about कि जी मैंने जाकर कुछ कमाना है at a daily basis. But for a majority, ठीक है, they need to really sit back and think. And what are the cushiony subjects? I'm not going to name them. How many people do you want to start hating on me already? You know, because मैंने इसी एक podcast में बहुत दुश्मन बना लिया, मुझे लग रहा है. The subject that you used to teach us. Was it a cushiony subject? Yes, definitely. Very cushiony subject. It was one of those extremely cushiony subject, but the way that I taught it to you guys, I was putting in analytical thinking. मैंने उसको change कर दिया था because when I saw कि मैं पढ़ा किसको रही हूँ at an individual level, I was like, so this might work as a cushiony subject for some of those kids in the class, but for other kids, they need to look at it in another way and they need to grasp it in another way so that it benefits them somehow. And I hope it did. It did. Obviously it did. I think it still does at this point because हमारी राइटिंग स्किल्स जितनी हिस्ट्री की क्लास में इम्प्रूव हुई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में, आई थिंक वो थ्रू आउट आवर एजुकेशन दे हेल्प्ड अस अ लॉट. Ma'am, with this, I thank you for your time. Thank you so much, Zen. I really appreciated it. I feel like I want to add a disclaimer at this point that whatever I have said is my personal opinion.
I'm not hating on anyone, and I am not an expert on anything that I have said, and it's just based on my own personal experiences in life. And final question that we like to ask our guests. Yeah. What is your dream for Pakistan? Zain, मैंने इतना लंबा बोल दिया कि मेरा ड्रीम क्या है पाकिस्तान पर. So if I have to sum it up, I would just say कि please focus on your own personal growth. Learn करें, grow करें. कभी भी ये ना सोचें कि जी बस मुझे सब कुछ आ गया है. You know, that should never be the thought. And thank you once again. Thank you so Inshallah, we'll have you again sometime. Okay. Yeah. Okay. Thanks. Thank you so much for watching the episode. If you have come this far, please do not forget to subscribe to our channel and keep supporting our Pakistani dream.